दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 54th वीडियो 17-02-54। आज हम लोग दूसरे चैप्टर का 25th सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 0-25। This is the last sutra of this chapter, in which Janak has replied to his guru's first questions, that what he has followed. In here, Janak gives the final dictate on what he has understood to be the self. This is Janak's final model of the self. This second chapter is a student's Ascharyam, his marvel of the infinite self beyond nature. It is disciples' joy at self-realization. Janak has understood by way of Sankhya Darshan, by way of Yog Darshan, and by way of Karma Rahasya. In much of their content, these studies have drawn from Vedanta, but in certain aspects, these are different. Ashtavakra has noted that. But Janak is the student of modern times of that period, and the studentship has remained same till now. Friends, when you feel that you have reached the final, you feel restful. Same is Janak's state. But Janak, though being restful, he gives a string into Badit Anuvritti. So this सूत्र is also termed बाधित अनुवृत्ति के पार। आपका मुमुक्षु होना ज़रूरी है दोस्तों। Friends, a few words about this second chapter. सत्य की खोज आत्मा की पहचान से होती है तो यह कुछ क्लाइमैक्स जैसा ही दोस्तों। The very traverse towards knowing Atma is a freeing process. The day you will say that you are not body, from the same very day your bondages will begin to release. Remember, शरीर साधन है, साध्य नहीं है, गोल नहीं है. It is an instrument to achieve. इसलिए अपने भीतर उस मैं को पहचान जो शरीर को देखता रहता है. वो जो मौन साक्षी है वही तू है. वहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है. You are the one who is seeing all, the one who is knowing all. That is you. Whatever you see, it means you are not those, that, and that you are separate from all that. When you believe yourself to be a Sakshi, you realize that you are separate from mind. And when you are separate from mind, then sorrows are away. By staying in Chetana, you become peaceful. This peace, this Chetana takes you to Atma. Ashtavakra teaches you
that the thoughts are not yours. In you, the thoughts that come are merely waves of the mind. यदि आप सोचते हो कि थॉट्स आपके हैं तो आप उनके साथ जुड़ जाते हो, लेकिन जब आप यह सोचते हो दैट दीज आर जस्ट कमिंग एंड गोइंग, देन यू बिकम फ्री. Then these thoughts are like clouds in the sky, and you are the sky. The clouds will come and go, but you will remain unaffected, pure. The form that sees thus is your real form. This alone is Sakshi Bhav, and this will bring you to your Atma. You do not change, thus you remain pure. That is why this is your Shuddh Swaroop. Remember, अपने स्थिर अस्तित्व में ठहरना ही आपके शुद्ध होने का अनुभव है. बस आप आत्मा की ओर चलो, स्वाध्याय की ओर चलो, और आप बॉन्डेजेस से फ्री होने लग पड़ते हैं. अष्टावक्र गीता 02:25. मय्यनन्त महां भूतावाश्चर्यम् जीव वीचयः उद्यन्ति धनन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः. दोस्तों, यहाँ पे आश्चर्यम का मतलब है वंडरफुल. अनंत महाबोधौ, इन द लिमिटलेस ओशन. क्या कहते हैं यहाँ पे अष्टावक्र? फाइनल मॉडल बता रहे हैं सेल्फ का. हाउ वंडरफुल. इन मी the shoreless ocean, the waves of individual selves rise, udyanti, strike each other, gnanti, play for a time and disappear, each according to its nature. क्या सिंपल मॉडल बता रहे हैं सेल्फ का, encompassing everything. Disappear when ignorance is destroyed and karma is worked out. And this all happens according to the state of ignorance and karmas of jivas. And this all happens according to their nature. Swabhavatah. Have no doubts. In reality, in naturality, you are that only. आश्चर्यम. आश्चर्य है कि मैं मुझ में अनंतम महाबोधा, अपार समुद्र करके, जीव विचयः, जीव रूपी तरंगें, उद्यंती, उठती हैं, घनंती, परस्पर लड़ती हैं, और खेलंती, खेलती हैं, और स्वभावतः, स्वभाव से ही प्रविशन्ति, लय हो जाती हैं. यहाँ जनक जी बाधित अनुवृत्ति को भी टच कर रहे हैं. दोस्तों, आपको ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, लेकिन तब भी बाधित हुए पदार्थ का जो पुनः प्रतीति होती है, अनुवृत्ति होती है, उसका नाम बाधिता अनुवृत्ति है. जनक जी कहते हैं कि बार बार आपको विचार आ ही जाएगा,
प्रतीति हो ही जाएगी, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है उसको फिर ये हानि नहीं पहुंचाता। दिस इज द मॉडल। जनक जी संपूर्ण प्रपंच को मिथ्या जानकर बताते हैं। ये आश्चर्य है। निष्क्रिय और निर्विकार मुझ चैतन्य समुद्र में अविद्या काम कर्म रूप स्वभाव से जीव रूपी तरंगें उत्पन्न होती हैं, परस्पर शत्रु भाव से ताड़न करती हैं और मित्र भाव से परस्पर क्रीड़ा करती हैं और अविद्या काम कर्म के नाश होने पर मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। मतलब जीव रूपी तरंगें अविद्या बंधन से उत्पन्न होती हैं, जबकि वास्तव में मैं चित्त रूप हूँ। जी कहते हैं जिस प्रकार घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, बस उसी प्रकार मुझ में संपूर्ण जीव लीन हो जाते हैं और यही ज्ञान है। एज पर द लर्नेड जनक, दिस इज द अद्वैता, एनर्जी इज वन। यहाँ वो सांख्य दर्शन की फिलॉसफी से इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, वेदांत को समझ रहे हैं। देयर इज ओनली वन एनर्जी। यह भी कहते हैं कि जीवात्मा इज नॉट दिस एनर्जी, जीवात्मा इज द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। दिस एनर्जी वन, इट बेस्टोज लाइफ। जनक जी समझाते हैं लाइफ इज सिनोनिमस विद प्राण एंड वायु इज द कैरियर ऑफ प्राण। एक सांस लेते हो आपको, इट कैरीज इनटू योर बॉडी 5 टाइप्स ऑफ प्राणास and 75 types of main upranas. This energy travels in you through 72,000 nadis. This one energy alone travels in you. Only its forms are different. And these forms of the same energy make you feel differently and make you act differently. Know that the energy of anger or of hatred or of love or of compassion or your all emotions is same. Ashtavakra has realized that only one is all important and rest all are only the formations, imaginations, भ्रम करते हैं वो। और यही ज्ञान अद्वैत है। जैसे ये मृग तृष्णा, रेगिस्तान में आप चल रहे हो, बेचैन हो गर्मी के कारण और प्यास भी लगी है और आपको दूर जल दिखाई दे रहा है। जब आप वहाँ पहुँचते हो उसके पास, तो वहाँ आपको जल नहीं मिलता, क्योंकि रेत में जो सूर्य की किरण पड़ रही थी वो ही दूर से जल रूप होकर दिखाई दे रही थी। ऐसे अब आपने जान लिया कि यह रेत ही आपको भ्रम करके जल दिखाई दे रही थी, वो जल नहीं है। अब आप इससे भ्रमित नहीं होते हो। अब जब आपको वही रेत किरण के संबंध से चमकता हुआ जल दिखाई देती है, परंतु आप जल की इच्छा करके वहाँ नहीं जाते हो, क्योंकि अब आपको निश्चय हो गया है कि यह जल नहीं है, यह दूरत्व दोष है।
और किरण के संबंध से मुझको जल दिखाई देता है। पुरुष को यथार्थ ज्ञान हो गया है, लेकिन यह ज्ञान बार बार बाधित होता है। जल ज्ञान की जो पुनः अनुवृत्ति मतलब प्रतीति है, उसी का नाम बाधिता अनुवृत्ति है। जनक जी कहते हैं ये होती तो है, लेकिन अब ज्ञानी की कोई हानि नहीं करती। दिस इज अ स्टेट विच continues to happen. In continuance of this example, जनक जी को अनुभूति हो गई है आत्मा के अज्ञान से जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, उसके सत्यवत ज्ञान का बाध आत्मा के ज्ञान से भी हो गया। तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात पुनः जो उसकी प्रतीति विद्वान को होती है, वही बाधिता अनुवृत्ति कही जाती है। वह प्रतीति विद्वान की, ज्ञानवान की कोई हानि नहीं कर सकती है, क्योंकि ज्ञानी को उसके असत्य जानकर उसमें फिर आसक्ति नहीं रहती है। वो तो उसे मिथ्या जानकर अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है। जनक जी इस सूत्र में क्या कह रहे हैं दोस्तों, कि क्रिया से रहित निर्विकार आत्मा रूपी महान समुद्र में जीव रूपी वीचियाँ अनेक तरंगें उत्पन्न होती हैं और परस्पर अध्यास से वह जीव आपस में मारपीट करते हैं, लड़ते हैं, खेलते हैं। जैसे सपने के कारण जीव स्वप्न में परस्पर विरोध आदि खेल करता है, और जब उनके अविद्या आदि का नाश हो जाता है, तब फिर अपने असली स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। लेकिन यह चलता रहता है, फिर अविद्या आदिकों के कारण उत्पन्न होते हैं, फिर लय होते हैं। और जैसे घट रूप उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति व्यवहार होता है, और घट रूपी उपाधि के नाश होने से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है। वास्तव में आकाश की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही नाश होता है। वैसे ही शरीरस्थ आत्मा की भी ना उत्पत्ति होती है और ना ही नाश होता है। ज्ञानवान को बाधिता नुवृत्ति करके जगत की प्रतीति भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं होती है। Thus, Janak has explained the final model of the self. दोस्तों, अष्टावक्र और जनक के बीच के इस ज्ञान वार्ता की चर्चा अब दूर दूर तक फैल गई थी और जनकपुरी तो पूरी सज ही गई थी। जनक के अपने शास्त्रार्थ की रुचि के कारण उसे तो बहुत लोग जानते थे दोस्तों। उसके राज्य में ही कहोड़ अष्टावक्र के पिता, उनकी अपनी इंस्टीट्यूशन थी, गुरुकुल था। उद्दालक जो अरुणी, जो उनके ग्रैंडफादर थे अष्टावक्र के, उनकी तो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। सुजाता अष्टावक्र जी की माँ स्वयं एक वेद ज्ञाता थी। और उनका परिवार दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, श्वेत केतु कहते हैं सरस्वती ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए थे। वाजश्रवस, नचिकेता जो यम से मिलके आए थे, इन्हीं के परिवार में थे। और ऋषि गौतम अलावा कितने ही ज्ञानी महाज्ञानी ऋषि थे, सब तो दरबार में पहुंच ही गए थे। कितने सारे स्टूडेंट्स इनकी यूनिवर्सिटी के
यहाँ की दिनचर्या में हिस्सा ले रहे थे और जनक के दरबार के कितने मुनि, कितने ब्राह्मण कुरुवंश के, पंचाल के वहाँ पे आके बस गए थे। जो सो कॉल्ड नास्तिक थे, ये मीमांसा वाले, न्याय शास्त्र वाले, ये सब भी यहाँ आके बैठ गए थे, बस गए थे, रिकॉर्ड करते जा रहे थे। पतंजलि के फॉलोअर्स, योग दर्शन स्कूल के विद्यार्थी, सांख्य दर्शन के प्रोधा, पंचकोशा स्कूल के ज्ञानी महापुरुष सब जनकपुरी में दरबार में अष्टावक्र गीता का निर्माण होते हुए देख रहे थे, समझ रहे थे। वंदिन जो अष्टावक्र से हारने के बाद शास्त्रार्थ में बनारस को निकल गए थे और वहाँ से फिर आगे हिमालयस के लिए निकल गए थे अपनी तपस्या के लिए, उनको मैसेज भेज दिया गया था यहाँ के चेंजेस के बारे में। नेवर टिल दिस एरा भारत हैड विटनेस्ड सच इरप्शन of meaning of truth of Vedic tenets. Ashtavakra tore the blinds which hid the truth from common aspirants. Ashtavakra ripped the curtains which curtailed the Vedic principles. Janak brought the meaning of Vedic sutras open for the astute students. The learned exclaimed that this dialogue was to rewrite the Advaita philosophy of Vedas in the newer language for men in the ages to come. Friends, Janak had maintained his presence in his kingdom, in his kingship, in his ministers, in his family. Sunaina was his constant companionship. Janak was of the opinion that he was intelligent enough to have managed the kingship and the Gyan Marg both. Deep within, Janak knew that it was not all that straight, that it was somewhat skew. Janak had the subdued opinion that his 100% was not so in reality. Yes, so many answers urged forth in his insight. Janak did feel many times that it was all his intelligence, and that intelligence was only as inert, as feeble, as transitory as any imagination, as the night's dream. Janak was also remembered of Katha Upanishad when Lord Yam gave direct instructions to Nachiketa. Read from the book what loss has been caused because of our educated and the rich have not been taught our scriptures properly. Katha Upanishad 2-1-14 and 2-1-15. यमराज के ये शब्द जनक के दिमाग में गूंजे थे जब उन्होंने पढ़ा था। आज जनक को फिर से विचार हो आया है कि उन्होंने अपने पढ़े हुए शास्त्रों को शायद बहुत ज़्यादा वेटेज दे रखी है। अष्टावक्र जी तो कुछ और ही सत्य समझा रहे हैं, बता रहे हैं। फिर भी जनक ने अपना अभी तक का समझा हुआ फाइनल मॉडल बता दिया, समझा दिया। यही जनक को अभी तक
बेस्ट समझ में आया था। अपने गुरु के सामने जनक निश्चल और साफ सुथरे सत्य, अपने सत्य के हिसाब से हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। तो दोस्तों, ये है अष्टावक्र गीता के सेकंड चैप्टर का लास्ट सूत्र। जनक मैच्योर्ड हैं, एजेड हैं, किंग हैं, राइटियस हैं, निष्ठावान हैं, कर्मठ हैं, तब भी मुमुक्षु हैं। अष्टावक्र गुरु हैं, उम्र में उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मविद हैं। ये गोष्ठी, ये डायलॉग्स, ये यज्ञ फेमस तो होना ही था जनक के दरबार में और पूरे उत्तर भारत में। अष्टावक्र हैज़ नोटेड all these phenomena, the entire panorama of Janak's plight and Janak's insight. So friends, this is Janak's final model of the self as per this second chapter of Ashtavakra Gita, आश्चर्यम। एक लेवल तक तो जनक जी पहुँचे ही हैं। ज्ञानवान को बाधिता अनुवृत्ति से कोई हानि नहीं होती है। फ्रेंड्स, आई एम प्रेटी श्योर you would have liked the explanations of open secret on these simple sutras of Ashtavakra Gita. These sutras are carrying deep meaning for the Indian professionals. These give a deep view at our Vedic tenets. ज्ञान कांडियों के लिए जो हमारा मार्ग है प्रोफेशनल्स का, हमें दोस्तों और कोई मार्ग सूट ही नहीं होता। तो हम जैसे ज्ञान कांडियों के लिए अष्टावक्र गीता एक बहुत बड़ी लीवरेज हमारी साइक में मिल जाती है। ओनली वी हैव टू रीड इट, ओनली वी हैव टू grope into the meaning of these sutras, and we have to enjoy and be respectful to this method of communication, of dialogues. In no other scripture you will find such communication where a very young Brahmavid Guru speaks to a aged, matured, mumukshu shishya. Thanks friends. Please give this video a like, a thumbs up, and please share it with those contacts who you feel will be benefited from these videos. Thank you for helping us enhance our viewership. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब हैं तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.